Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Government Engineering College, Bilaspur, Chhattisgarh. And in this video lecture series, I am dealing with Signals and System subject, and till now we have completed Module 3 and we are in Module 4, that is Fourier representation for aperiodic signals, and we have already completed our first lecture in which I have dealt with introduction of Fourier transform, how we represent our Fourier transform in magnitude and phase representation, and we have seen some linearity property and time reversal property in the last lecture. If you have missed out that, please go and see first that lecture and then you should see this lecture because it is a continuation of last lecture only. So we'll start with our today's session and we'll see we have seen the Fourier transform for basic type of signal, that is exponentially decaying signal, double sided exponential signal and all. Now we'll see some standard signal like that of signum t. Okay, so we'll see one signal is there, this type of signal is there, and this signal is called as in time domain we'll call it as signum of t, है ना? This is f of t is our signum of t. Now we need to calculate its Fourier transform. We need to calculate its Fourier transform. So what we will be going to do, see, this is not actually that type of signal which is aperiodic, or we can say that it is not absolutely integrable. So this type of signal cannot be directly calculated from this type of formula, minus infinite to infinite ft e to the power minus j omega t. Generally we have this formula for our for calculating our Fourier transform. But if we do calculation from here, like from 0 to infinite, if we'll do one side also, from 0 to infinite, if we'll take one value and we'll integrate, so you'll get infinite value which is not less than infinite. It is infinite which is not absolutely integrable. So actually this signal cannot be calculated with this type of formula. Okay, this signal cannot be calculated with this type of formula, and this formula is actually direct calculation of Fourier transform formula, है ना? So इस टाइप के सिग्नल्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको कुछ दूसरे तरीके से इस टाइप का सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन देखना है तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा. तो क्या करते हैं, चलिए आपको ये याद होगा कि इफ यू हैव रिमेंबर्ड द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ सिग्नल and this was our e to the power minus at u of t, and this was e to the power at u of minus t and with negative sign. ये सिग्नल अगर आपको याद होगा तो इस सिग्नल का हम लोगों ने फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन देखा था, फोरियर रिप्रेजेंटेशन. अगर इसमें इस सिग्नल में अगर लिमिट a टेंडिंग टू 0 कर दिया जाए तो ये सिग्नल क्या ऐसा हो जाएगा, क्या e टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये ut हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा. क्या ये बिल्कुल सिग्नम टी जैसा दिखता है? तो हाँ, ऐसा दिखता है. तो क्यों ना इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था एफ ओमेगा था, वो क्या था अगर आपको याद होगा तो जे माइनस 2 ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही मेरे ख्याल से आपका था, है ना? अब इसमें हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 0 रख देते हैं. तो ए की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा इसका लिमिट ए टेंडिंग टू 0 अगर अपन एफ ओमेगा कर दें तो क्या होगा, रख के देखते हैं. चलिए हम इसमें रख के देखें तो जे तो है ही, माइनस 2 ओमेगा रहेगा ही, ए स्क्वायर खत्म, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का था. तो यहाँ पे फाइनली आ गया माइनस 2 जे, ठीक है, बाय ओमेगा. जे को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय जे ओमेगा. तो आपका एफ ओमेगा आ गया. तो अगर आपको सिग्नम टी दिया हुआ है, सिग्नम टी दिया हुआ है, तो सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होता है ये. तो कोई भी अगर ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आया ना, कैलकुलेशन आपने डायरेक्टली नहीं किया. वी हैव नॉट कैलकुलेटेड दिस Fourier transform from direct method. Which was direct method? This formula which you are seeing in the screen, this is the direct formula for calculation of Fourier transform, but we have not done it. Why we have not done? Because it was not absolutely integrable. So you cannot integrate this thing, so you will not get f omega. So we have done from another method. We have already calculated for this type of signal.
we have taken limit a tending to 0 and then we have calculated our f of omega. So this is your Fourier representation of signum of t. Okay, this you need to remember because in many question in even engineering services ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, चार ऑप्शन रहते हैं तो, या 2/j ओमेगा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो आपको चार ऑप्शन रहते हैं, तो आप वहां से फटफट बना सकते हैं। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ ऐसा है ना, ये सिग्नल है, ये आपका डेल्टा ऑफ टी है ना, ये आपका एफ ऑफ टी आपको बोला जा रहा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। अब आप ये सिग्नल में क्या कीजिएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम सबसे पहले तो अपना क्या काम करते हैं, व्हाट वी डू, वी जनरली डू इट बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब हम क्या करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी के जगह में डेल्टा टी रख देंगे और इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी कर देंगे। क्या ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है? तो आप देखिए कोई भी सिग्नल को डी टी से डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका जो भी रहता है वो यहाँ पे आ जाता है ना, तो आ जाएगा और डेल्टा टी तो रहेगा ही ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जीरो, ठीक है, डी टी, और ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रहेगा। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा टी ई टू द पावर जे ओमेगा जीरो को 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा डेल्टा टी ऑफ डी टी। और आपको पता है कि कभी भी डेल्टा टी को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं डी टी तो आंसर क्या आता है 1, है ना। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला कि डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको मिला 1, सिंपल। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि अगर आप यहाँ पे टाइम डोमेन में आपको एक इम्पल्स सिग्नल कोई इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा टी, तो उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन की अगर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी में वो कैसा रहेगा, एक 1 वैल्यू रहेगा, एक डीसी सिग्नल मिलेगा। और ये मतलब हर फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू 1 रहेगी, हर फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि वैल्यू ही इसकी सिर्फ 1 आई है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी की जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका हर फ्रीक्वेंसी पे 1 आएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यूनिट 2 में मॉड्यूल 1 में आपको मैं ये बता रहा था कि जब कभी भी एक सिस्टम में डेल्टा टी इनपुट दिया जाता है, व्हेन एवर वी गिव डेल्टा टी एज अ इनपुट टू अ सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, वी गेट आउटपुट एज एच ऑफ टी, लेट सपोज एच ऑफ टी वी आर गेटिंग आउटपुट। सो और इस एच ऑफ टी को हम बोलते थे इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि हम इनपुट इम्पल्स दिए हैं तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। हम जनरली यही क्यों कैलकुलेट करते थे, एलटीआई सिस्टम में आप हमेशा देखे होंगे हम एच टी बार बार इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि देखिए कभी भी अगर आप इनपुट डेल्टा टी दे रहे हैं, इनपुट अगर आप किसी सिस्टम को चेक करना है ना, किसी सिस्टम को कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिस्टम किसी फ्रीक्वेंसी पे खुद से कुछ जनरेट कर दे रहा होगा। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम बढ़िया होना चाहिए कि भैया जो मैग्नीट्यूड आपने दिया है ना उसके साथ मैं, अगर मेरे को बोलो ना छेड़खानी करने के लिए तो मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं चुपचाप जैसा आ रहा है वैसा मैग्नीट्यूड पास कर दूंगा, हर फ्रीक्वेंसी पे सेम मैग्नीट्यूड रखूंगा। ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। तो डेल्टा टी क्या करता है, डेल्टा टी अगर आप टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो ये हर फ्रीक्वेंसी पे 1 मैग्नीट्यूड देता है। इसीलिए हम एक्चुअली चाहते क्या है, जब हम आउटपुट चाहते हैं किसी सिस्टम से तो, या चेक करते रहते हैं, कभी हम लोग टेस्ट करते हैं किसी सिस्टम को तो हम ये टेस्ट करते हैं कि हर फ्रीक्वेंसी पे ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उस सही तरीके से काम करने के लिए हमको चेक करने के लिए हमको डेल्टा टी इनपुट देना पड़ता है, तभी हमको पता चलता है कि भैया वो सारे, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इनपुट आपने ये दिया है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो ये हर फ्रीक्वेंसी पे 1 मैग्नीट्यूड का है। तो अगर आप इसको इनपुट देते हैं सिस्टम में तो सिस्टम फिर कैसा आउटपुट आता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हर फ्रीक्वेंसी पे कैसा काम कर रहा है आपका सिस्टम, क्योंकि आपने इनपुट तो वही दिया है। इसीलिए हम हर सिस्टम में सिस्टम रिस्पॉन्स जानने के लिए, मतलब कभी भी कोई भी सिस्टम रिस्पॉन्स अगर जानना है, सिस्टम का रिस्पॉन्स जानना है एट ऑल फ्रीक्वेंसी, जब हर फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम का रिस्पॉन्स जानना है तो आपको इनपुट हमेशा कौन सा देना पड़ता है, इम्पल्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला, है ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स ही यूज करते हैं हम लोग जनरली। इसीलिए तो आपसे कभी कोई इंटरव्यू वगैरह कहीं पे क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर ऐसा कुछ दे सकते हैं, है ना।
चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, और आगे हम लोग कुछ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी देखते हैं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि कई कई जैसे सिग्नम टी में हम डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ दूसरे तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्म में भी हम लोग हाथ मारते हैं कि देखते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाल पाते हैं कि नहीं। तो लेट्स सी, आपको निकालना है फाइंड इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ओमेगा। आपको डेल्टा ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर कोई इम्पल्स सिग्नल है, देखिए फ्रीक्वेंसी में कोई सिग्नल इम्पल्स है, उसका टाइम डोमेन में, इसका टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो टाइम डोमेन में उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसा उसका वेरिएशन होगा, ये हमको चेक करना है। तो सबसे आपको पता है कि इन्वर्स निकालने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या फॉर्मूला है, अगर आपको एफ टी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 पाई होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ऑफ ओमेगा नॉट टी डी ओमेगा आप रखते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया ये। अब हम इसको रख के देखते हैं, चलिए 1/2 पाई है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ ओमेगा क्या है, डेल्टा ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, है ना, ये आपका हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आ गया 1/2 पाई, ये आपका हो गया 1 वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू इसकी हो गई 1, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो एफ ऑफ टी हो गया ये। तो आप आंसर से आपको क्या समझ में आया कि डेल्टा ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर कोई सिग्नल इम्पल्स है तो उसका टाइम डोमेन में क्या होगा, आंसर 1/2 पाई, मतलब एक डीसी वैल्यू होगा, 1/2 पाई की वैल्यू होगी। इसका मतलब समझ जाइए कि एक सिग्नल था जो टाइम में इम्पल्स था, इसके जस्ट हम पहले देखे थे टाइम में इम्पल्स, उसका जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन देख रहे थे वो था एक डीसी वैल्यू जो 1 की वैल्यू थी। और अगर आप इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल अगर आप फ्रीक्वेंसी में लेते हैं तो उसका टाइम में क्या मिलता है, 1/2 पाई आपको मिलता है, लेकिन डीसी वैल्यू ही मिलेगा, है ना। तो अल्टीमेटली हो क्या आ रहा है कि impulse signal in frequency domain will transform to a DC signal in time domain, and impulse signal in time domain will also transform to a DC signal in frequency domain। ये जस्ट उल्टा सीधा एक जैसा ही है ना। अब अगर ऐसा है तो चलिए मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा जो कि है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम एफ ऑफ ओमेगा को हम ये बोलते हैं कि एफ ऑफ टी है, अगर एफ ऑफ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है, तो अगर एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो गया तो यहाँ पे एफ टी रहेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी आ जाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अगर आप करते हैं, मतलब ओमेगा में फ्रीक्वेंसी में अगर आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट और राइट, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, मतलब जस्ट यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जब शिफ्ट करते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, लेकिन यही चीज अगर अपन टाइम में करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। टाइम, यहीं पे आपको मैं टाइम शिफ्टिंग भी बता देता हूँ, चलिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एफ टी आपका, अगर एफ ओमेगा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो अगर एफ टी माइनस टी नॉट अगर आप करते हैं ना तो ये हो जाएगा एफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा और आपका माइनस टी नॉट, है ना। जो भी आपका ये साइन है वही यहाँ पे आ जाता है, टी में आप जब शिफ्ट करते हैं तो ये सेम साइन चलता है, और ओमेगा में जब आप शिफ्ट करते हैं तो उल्टा साइन चलता है, ये याद रखिएगा, है ना। और एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी नॉट। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे हम ओमेगा नॉट पे शिफ्ट कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा नॉट आ रहा था, और यहाँ पे हम टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं टी नॉट, तो यहाँ पे टी नॉट आ रहा है, ओमेगा सेम है, बस इतना ही अंतर है। ये है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए चलिए, अगर आपको पूछा जाए कि डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, क्योंकि ये तो खुद फ्रीक्वेंसी में है। तो विल सी,
फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। देखिए अगर आपको पता है कि इफ़ यू नो डेल्टा ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ओमेगा दैट इज 1/2 पाई, ये अगर आपको पता है तो आप इसको इतना लंबा चौड़ा मेथड आप इंटीग्रेशन करेंगे वो सब करेंगे, उसके बजाय प्रॉपर्टी लगाइए, सीधा 1/2 पाई होगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, है ना, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ये सीधा सीधा इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अगर आपको कोई बोलेगा सीधा सीधा अगर ऐसा आपको बोलता है कि चलिए डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, है ना, ये अगर आपको बोलता है तो आप सीधा बोलेंगे 1/2 पाई ई टू द पावर जे माइनस ओमेगा नॉट टी, है ना, ये आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये भी इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से आप ये भी साबित कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा ले जाएं कि 2 पाई को इधर ले जाएं और इसको हम लोग ले जाएं वहाँ पे, तो आपका आ जाएगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, आप ये इक्वेशन को लेके चलिए। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये इक्वेशन को लेके चलिए, इसमें आप क्या कर दीजिए 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, 1 का। ठीक है, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई, तो ये आपको मिल सकता है, या फिर आप इसको 1 को आप इधर से भी ले सकते हैं 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ई टू माइनस प्लस जे ओमेगा नॉट टी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका आपको ये लेना है कि अगर आपको सिर्फ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी चाहिए तो आप इसको उधर ले जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई बोलता है ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, अब देखिए ये सिग्नल कैसा है, ये सिग्नल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिग्नल है क्योंकि ई टू द पावर जे है। इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस जे ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी, है ना, ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी चाहिए तो आप 2 पाई को इधर ले जाइए, तो आप क्या आएगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सिंपल सा, सिंपल तरीका आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। अगर आपको कोई बोले ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे, आप ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे इसको इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो देखिए जैसा कि हम लोग एक स्टैंडर्ड सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड सिग्नल है, ये तो यूलर सिग्नल ही है ना। तो यूलर सिग्नल का हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ई टू द माइनस जे ओमेगा नॉट टी का क्या आएगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये हो गया। तो अगर ऐसा है तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर कोई बोलेगा आपको निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, मेरे को मालूम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो वो जे ओमेगा नॉट टी का 1/2 तो रहेगा ही, इट वॉज जे ओमेगा नॉट टी का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये होता है ना, ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी का। और ई टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का क्या होगा, हाफ तो रहेगा ही, जो ये 2 है यहाँ रहेगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, है ना, ये रहने वाला है। तो अल्टीमेटली ये वाले टर्म को आप सीधा सीधा कॉस बोल सकते हैं क्या, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बोल सकते हैं। और इस वाले टर्म को आप सिंपल सिंपल क्या बोल सकते हैं, 2 कटा 2 कटा, आपका पाई कॉमन आ गया, पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। देखिए आप जाने अनजाने में आप एक स्टैंडर्ड सिग्नल कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी को आप कैलकुलेट कर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिए। इसको अगर हम प्लॉट करें ना तो आप फ्रीक्वेंसी में है, देखिए टाइम में आप इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा प्लॉट करेंगे, आप बचपन से करते आए हैं ये, है ना, ये बचपन से आपका कॉस ओमेगा नॉट टी आपको पता है। फ्रीक्वेंसी में आप इंजीनियरिंग आते हैं तो ये आपको पता रहता है। तो इंजीनियरिंग में फ्रीक्वेंसी में देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मतलब यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू पे कितनी वैल्यू है इसकी, पाई है ना, और एट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट यहाँ पे
है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, पाई, ये वैल्यू है। क्या आपको याद है क्या कि हम जब cos ओमेगा नॉट टी का हम फोरियर सीरीज भी ले रहे थे तो भी हमारा सी एन जो फोरियर कोफिशिएंट आता था C1 और C ऑफ -1 ही एग्जिस्ट करता था, अगर आपको ध्यान होगा तो इसमें 1/2, इसमें भी 1/2 आपका एग्जिस्ट करता था। तो कहीं ना कहीं जब हम पीरियोडिक सिग्नल की, ठीक है, एक पीरियोडिक सिग्नल की हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, व्हेन एवर वी ट्राई टू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, it is same as that of Fourier series, just the lines or the Fourier coefficient, the lines were replaced by this impulse। ये एक impulse के द्वारा replace कर दिए गए, क्योंकि डेल्टा है तो ये impulse है। और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम ऐसे C ऑफ 1 में हम लोग ऐसे हाफ बताते थे, C ऑफ -1 में हम हाफ बताते थे। तो ये क्या होता था, हमारा एक लाइन होता था। तो इसका कंक्लूजन यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इतने देर से, कि कभी भी हम एक पीरियोडिक सिग्नल, देखिए cos ओमेगा नॉट टी पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं है, कभी भी हम कोई भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो बिल्कुल फोरियर सीरीज जैसा ही होता है, बस हम लाइंस को इम्पल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये सब चीजें हैं। तो देखिए, अब हमारा उद्देश्य कंप्लीट हुआ जो हम इतने देर से मैं चाह रहा था आपको बताना, क्योंकि देखिए ये टाइम शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताने के पीछे मेरा लॉजिक था ये बताने का कि आपको डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को आप लंबे चौड़े मेथड से मत करिए सॉल्व, आप सिंपल इसको इस मेथड से सॉल्व करके आप आंसर लाइए। आपको मैंने टाइम शिफ्ट ये इसको करने के बाद आपको मैंने ये भी बताया कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट t को कैसे लिखा जा सकता है, ये भी एक यूलर स्टैंडर्ड सिग्नल है, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा कर सकते हैं तो उस फिर ऐसा भी किया जा सकता है, और ऐसा कर सकते हैं तो हम cos ओमेगा नॉट t को भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे को आपको cos ओमेगा नॉट टी तक पहुंचाना था, जो मैं आपको यहाँ तक पहुंचा पाया। तो आपको कभी भी कम्युनिकेशन में भी आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है कि cos, क्योंकि हम जब भी मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इधर से शिफ्ट करते हैं, इधर से शिफ्ट करते हैं ना। तो cos, जब भी कोई सिग्नल को एफ टी cos ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्नल एफ टी एफ माइनस ओमेगा नॉट एफ प्लस ओमेगा नॉट ऐसे शिफ्ट हो जाता है। आपको अगर कम्युनिकेशन पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, cos ओमेगा नॉट टी तो आ गया, हम sin ओमेगा नॉट टी को भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। sin ओमेगा नॉट टी क्या होता है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी बाय 2j, यही होता है। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, आप क्या करिए, देखिए आप 1/2j तो लिख लीजिए, 1/2j, है ना। और e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी का आपको पता है कि 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होता है ना। और फिर माइनस साइन है ही, 1/2j तो बाहर निकल गया, होता है 2 पाई, इसका क्या होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, है ना, ये होता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया, आंसर पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय जे कॉमन ले लेते हैं, और आपका आंसर आ गया डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये आपका आंसर हो गया किसका, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी का। तो ये भी एक स्टैंडर्ड सिग्नल है, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी एक पीरियोडिक सिग्नल है। अगर आपको याद होगा तो साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी का फोरियर सीरीज कैसा आ रहा था, सी ऑफ 1, ठीक है, 1/2j, सी ऑफ -1 -1/2j, ऐसा आता था, है ना। तो अल्टीमेटली सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, दो ही फ्रीक्वेंसी पे अपन इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो cos ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी, मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये होता हो क्या रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम क्या देखें, हम ये देखना चाह रहे थे कि कुछ सिग्नल्स जो अभी तक हम लोगों ने देखे वो तो हम लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए। जैसे आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, जो ऐसा वाला सिग्नल था हमारा, इसका हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म a प्लस जे ओमेगा निकाल लिया, है ना। आपको अगर याद होगा कि इसी का एक और सिग्नल था डेल्टा टी भी था, जो हमने ऐसा निकाला था, है ना। इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म याद होगा तो ये बिल्कुल ऐसा 1/2 पाई यहाँ पे होता था, है ना। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई होता है ना। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 बाय, ओके सॉरी, डेल्टा टी का
फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है एक्चुअली। हाँ, मैं थोड़ा वो हो रहा था, बोलने में मिस्टेक कर दिया। डेल्टा टी का 1 होता है एक्चुअली। डेल्टा ऑफ ओमेगा का जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/2 होता है ना। तो डेल्टा ओमेगा आप मत भूलिएगा। अच्छा, तो ये सिग्नल जो था ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था। ये सिग्नल जो था आपका ये भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ना, ये भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है। आपको अगर याद होगा e⁻⁻a mod ऑफ t, ये सिग्नल ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ये सिग्नल होता था। तो इसका भी आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। आपको ये याद होगा कि ये वाला जो सिग्नल था ये भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था। तो इसका भी आपको -j/-2 ओमेगा बाय a² प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा था, है ना। Ultimately, what we were trying to do is whatever the signal may be, if it is absolutely integrable, अगर वो उस इंटीग्रेशन वाले मेथड में फिट हो रहा था तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन कुछ सिग्नल्स जैसे सिग्नम ऑफ टी, है ना, सिग्नम ऑफ टी जो है ये हमारा उस मेथड से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, फिर लिमिट a टेंडिंग टू 0 वाला फॉर्मूला अपनाया और 2/j⍵ इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला। आपको अगर याद होगा मेरे ख्याल से, है ना, तो हम लोगों ने ये वाला भी एक सिग्नल दिया था जो था आपका 1, ये वैल्यू है 1, है ना, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको याद है क्या, पता है क्या? देखिए डेल्टा ऑफ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/2π। तो अगर 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको कोई निकालने बोलता है 1, है ना, तो ये क्या होगा 2π इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा, है ना, ये आपका होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि 1 क्या है टाइम डोमेन में, ये 1 आपका टाइम डोमेन में है और ये क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर आप 1 को हम डायरेक्टली क्यों नहीं निकाले, ऐसे वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाले, क्योंकि इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आप ऐड करते होगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसको हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मूले से निकाले, थोड़ा सा उल्टा सीधा करके, मतलब 1 को यहाँ रख के इसको ऐसे करके, तो इसको हम इस तरीके से निकाले थे, है ना। वैसे ही सिग्नम टी में भी यही किए थे, आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली फॉर्मूले में रखे थे तो आंसर तो आ नहीं रहा था, तो आपका वो इनफाइनाइट हो जा रहा था, तो आपको लिमिट a टेंडिंग टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा था। आप e⁻j⍵0t, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ठीक है, इसमें cos ω0t भी है, sin ω0t भी है, तो ये भी आपका इंटीग्रेबल तो होगा नहीं, है ना, ये भी इंटीग्रेबल होगा नहीं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक दूसरे मेथड से इसको हम लोगों ने डेल्टा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट निकाला। e⁻j⍵0t के लिए भी हम लोगों ने दूसरा मेथड लगाया था और कोई दूसरे जुगाड़ से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला, ठीक है। अगर आपको cos ω0t भी आपको अगर कैलकुलेट करना था तो क्या हम डायरेक्टली फॉर्मूले में गए थे क्या? नहीं गए थे। हम इसको कैसे किए थे, पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आपको साइन ओमेगा नॉट टी भी याद होगा, साइन ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, π/j डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये होता है। ये सब बताने के पीछे लॉजिक क्या है कि these all time domain signals were not directly calculated with the formula of inverse Fourier transform। ये सब डायरेक्टली फॉर्मूले से तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, कुछ जुगाड़ बिठाया, कुछ इधर उधर किया तो ऐसा हुआ। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि ये डायरेक्टली एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको अब फाइनली एग्जिस्टेंस कंडीशन बताना चाह रहा था, एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो हम लोगों का सेकेंड टॉपिक था, एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो ये है कि देखिए अगर आपका, जब आप क्या करने जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आप चाहते हैं कि एफ टी e⁻−j⍵t dt, ये पोर्शन आप इंटीग्रेट करते हैं तभी तो आपका एफ ओमेगा आता है ना, यही आपका एफ ओमेगा आता है, ऐसे ही करते हैं आप। इस अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है ये अगर लेस देन इनफाइनाइट है तब तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पे रखते हैं, फॉर्मूला पे आंसर आता है, वही आपका फाइनल आंसर होता है। लेकिन जब ये इनफाइनाइट हो जाता है, ये एग्जिस्टिंग मतलब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, तो आप क्या, आप नहीं निकाल पाते हैं।
जैसे सिग्नम ऑफ टी का आप नहीं निकाल पाए, कायदे से आप नहीं निकाल पाए थे सिग्नम ऑफ टी का। वन भी, जैसे आपका वन वाला सिग्नल था, इसको भी आप नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए बेसिकली ये क्या है ना, एग्जिस्टेंस कंडीशन है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का। वो ये कहता है कि अगर आपका मॉड ऑफ एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी अगर लेस देन इनफाइनाइट है, तभी आप उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। ठीक है, तभी आप उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे विथ डायरेक्ट टेक्निक। जो डायरेक्ट टेक्निक है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, उससे अगर आपको निकालना है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो उसका मॉड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपका एफ टी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, अगर आपका एफ टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो ये मान के चलिए कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा विथ डायरेक्ट टेक्निक। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म विथ डायरेक्ट टेक्निक निकलेगा। डायरेक्ट टेक्निक का मतलब समझ रहे हैं ना, यही फॉर्मूला जो हम माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, इस फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा। और इस टाइप के सिग्नल को, इस टाइप के फोरियर ट्रांसफॉर्म को, इस टाइप के फोरियर ट्रांसफॉर्म को बोला जाएगा वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस टाइप के सिग्नल को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो साइन और कोसाइन तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है नहीं, इसलिए उसका डायरेक्ट टेक्निक निकाले नहीं। सिग्नम टी भी नहीं था, वन भी नहीं था, ये सब सिग्नल क्या थे? ये सब सिग्नल हमारे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं थे। ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी भी नहीं था, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी भी नहीं था, कोई भी ऐसा सिग्नल था वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं था, है ना। ऊपर वाले सिग्नल थे जिनका हमने डायरेक्टली निकाला, ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ये सब का हम लोगों ने निकाला है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल्स का क्या किया जाए जिस सिग्नल्स का हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। तो उस सिग्नल में हम क्या करते हैं, उस सिग्नल में हम कुछ दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने इतने सारे बताए, ये सब में हम लोगों ने कुछ जुगाड़ बिठाया था, है ना। तो जब कभी भी आपका एफ टी है ना, ये अगर नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, अगर ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जब निकालेंगे, वो आप निकालेंगे इनडायरेक्ट टेक्निक से। ठीक है, इनडायरेक्ट टेक्निक मतलब हिंदी में इसको जो जुगाड़ अपन बोलते हैं, वैसा इनडायरेक्ट टेक्निक से निकालेंगे। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड या लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे ये वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये होता है लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब कि ये ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, इसकी मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पे ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाली जो वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये हर फ्रीक्वेंसी पे, जैसे एफ टी तो टाइम डोमेन का है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का हर फ्रीक्वेंसी पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब वेल डिफाइंड है, हर फ्रीक्वेंसी पे ये डेफिनेशन दे रहा है, अपना सब मैग्नीट्यूड फेज रिप्रेजेंटेशन देगा। लेकिन ये जो आप इन जुगाड़ बैठा रहे हैं, ये इनडायरेक्ट टेक्निक में आपको कोई पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं होगा। एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसी होगी ही होगी ओमेगा की जिसमें ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और तीसरा टाइप का एफ टी ऐसा भी होता है, जैसे अगर आप बोलेंगे आर ऑफ टी, जैसे रैम्प सिग्नल हो गया। रैम्प सिग्नल तो मतलब ये तो पूरा इनफाइनाइट की तरफ जा ही रहा है बिल्कुल भी। जैसे अगर आप बोलें ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी, मतलब आप ऐसा मान लीजिए, ये है ना, ये तो किसी भी हाल में आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉट डिफाइंड होता है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप किसी जुगाड़ से भी इसको आप नहीं बना सकते, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉट डिफाइंड होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो
आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म में 3 प्रजाति आपको समझ में आना चाहिए एग्जिस्टेंस कंडीशन के लिए। पहली बात तो अगर वो आपका एफ टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो आप डायरेक्ट टेक्निक यूज करिए और वेल डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, हर फ्रीक्वेंसी पे आपको वैल्यू मिलेगा। एफ टी आप नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो आप उसको इनडायरेक्ट टेक्निक से सॉल्व करिए, आपको लिमिटेडली डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा। और आपका एफ टी आर टी और जैसे टाइप के सिग्नल में वो अनडिफाइंड होते हैं, बिल्कुल भी उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको एफ टी दिया हुआ है यू टी, यू ऑफ टी का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, बिल्कुल स्टैंडर्ड सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो आपको देखिए ये है यू टी, यू ऑफ टी, जो टाइम डोमेन में t इज इक्वल टू 0 के बाद हर वैल्यू पे 1 वैल्यू देता है, इसको हम यू टी बोलते हैं, है ना। इसका आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी डोमेन पे, इसका जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मतलब इसका स्पेक्ट्रम में कैसा इसका वेरिएशन होगा, ये आपको चेक करना है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या? आप अगर डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं क्या, पहले तो ये बताइए, क्या ये एफ टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है? अगर आप 0 से इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू को ऐड करते जाएं तो ऑब्वियसली कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है ना। मतलब इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी डी टी का अगर आप करते हैं ना तो ये लेस देन इनफाइनाइट नहीं होता है ना, ये इट डज नॉट its value does not become less than infinite value, it is reaching towards infinite। तो ये डायरेक्ट टेक्निक से तो नहीं बनेगा। अब इनडायरेक्ट टेक्निक कैसे लगाएं, इनडायरेक्ट टेक्निक लगाते हैं, चलिए यू टी, यू ऑफ टी। अच्छा आपको ये पता है क्या कि हर सिग्नल का एक इवन कंपोनेंट भी होता है और ऑड कंपोनेंट भी होता है। तो इसका इवन कंपोनेंट होगा यू ऑफ ई टी प्लस इसका ऑड कंपोनेंट होगा यू ऑफ ओ टी। ये मैंने आपको इवन और ऑड सिग्नल में बताया था, है ना। इवन सिग्नल, इवन कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप यू टी को लेते हैं प्लस यू ऑफ माइनस टी को लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और इसी का अगर आप ऑड कंपोनेंट निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, यू ऑफ टी लेंगे माइनस यू ऑफ माइनस टी लेंगे, बाय 2 ले लेंगे। आपको ये पता है यू ऑफ टी कैसा होता है, यू ऑफ टी ऐसा होता है, यू ऑफ माइनस टी कैसा होता है, यू ऑफ माइनस टी ऐसा होता है ना, यू ऑफ माइनस टी ऐसा होता है। और इसका वैल्यू कितना है, हाफ, तो इसको हाफ लेते हैं, मतलब ये एक डीसी वैल्यू हो गई हाफ। तो यू ऑफ ई टी तो हाफ हो गया। यू ऑफ ओ टी क्या होगा, यू ऑफ ओ टी आप इसको करेंगे तो यू ऑफ टी कैसा होता है, ऐसा होता है यू ऑफ टी। यू ऑफ माइनस टी होता है ऐसा, लेकिन ये माइनस साइन है तो आप इसको मैग्नीट्यूड रिवर्सल ले लीजिए और इसका वैल्यू आप हाफ कर दीजिए। तो ये बिल्कुल हो गया हाफ ऑफ सिग्नम टी जैसा, है ना, हाफ ऑफ सिग्नम। तो अल्टीमेटली आप यू टी को, यू ऑफ टी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ हाफ प्लस हाफ ऑफ सिग्नम टी, ये आप लिखा जा सकता है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको ये पता है कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ये होता है, आपको ये पता है ना। डेल्टा ओमेगा का वैल्यू 1/2 पाई होता था तो 1 का 2 पाई होता है, 2 पाई डेल्टा ओमेगा। तो अगर आप हाफ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, पाई ऑफ डेल्टा ओमेगा, मतलब हाफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पाई ऑफ डेल्टा ओमेगा। अच्छी बात है। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आप अभी तक देखे हैं 2 बाय जे ओमेगा। हाफ ऑफ सिग्नम टी का क्या होगा, हाफ ऑफ सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 बाय जे ओमेगा, 2 कट गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि u ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, u ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा पाई इंटू डेल्टा ओमेगा प्लस 1 बाय जे ओमेगा। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट नहीं होता और बड़ा समझ में नहीं आता लोगों को कैसे आ गया, लेकिन आप ये समझिए कि आप इसको डायरेक्टली एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं हो पा रहा था, इट वाज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। सो व्हाट वी डिड, वी हैव used indirect technique to find out Fourier transform for unit step signal, and we have calculated ut is also equal to 1/2 plus half of signum t, and then 1/2 can be Fourier transform can be calculated as pi of delta omega and half signum t 1/j omega। तो आपका u of t Fourier transform is pi of delta omega plus 1/j omega। Simple technique to solve it। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिया हुआ है एक गेट पल्स, ठीक है, एक आपको गेट पल्स आपको दिया हुआ है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। मतलब आपको एक
सिग्नल दिया है ऐसा, और ये वैल्यू आपको दे रहा है -t/2 से t/2, और यहाँ आपको दे रहा है 1, है ना, ये वैल्यू आपको दिया है। अब आपको क्या करना है इसका, ये तो टाइम डोमेन में वेरिएशन दिखा दिया, अब आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका वेरिएशन देखना है ना। तो आप कैसे करेंगे, क्या ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है? तो बिल्कुल है, ये तो -t/2 से t/2 ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो फॉर्मूला पे डाल दीजिए वैल्यू -t/2 से t/2, अब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाने की जरूरत ही नहीं, जब वैल्यू ही -t/2 से t/2 एग्जिस्ट कर रहा है। ft क्या है, -t/2 से t/2 1 है, e⁻−j⍵t dt, ये वैल्यू हो गया, ये आपका f ऑफ ओमेगा आपका निकल के आएगा। तो चलिए इसको और निकालते हैं। इसको आपका आ गया e⁻−j⍵t बाय -j⍵, और यहाँ पे आ गया -t/2 से t/2, है ना। अब इसको आप करते हैं -1/j⍵, ले लेते हैं बाहर, e⁻−j⍵t/2 से -e⁻−j⍵, -t/2, तो ये +t/2 हो गया, है ना, और ये हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ 1/j⍵ को हम माइनस को अंदर ले चलते हैं, तो आपको आ जाएगा 1/j⍵, और आपका आ गया e⁻j⍵t/2 माइनस e⁻−j⍵t/2। क्या हम इसमें ऐसे 2j यहाँ पे और 2j यहाँ पे कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपका j कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2/ω साइन ऑफ ओमेगा t/2, है ना, ये हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ओमेगा है, यहाँ पे t मल्टीप्लाई कर दीजिए, t यहाँ पे भी t मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 2 को ना यहाँ पे ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t तो रहेगा ही, साइन ऑफ ओमेगा t/2 रहेगा, बाय ओमेगा t/2 रहेगा। कभी भी आप ये देखिएगा साइन ऑफ x बाय x अगर आप होता है तो इसको अपन सैम्पलिंग ऑफ x भी ले सकते हैं, है ना, ये सैम्पलिंग सिग्नल हो जाता है, सैम्पलिंग ऑफ x भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई t इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t/2, है ना, t इंटू सैम्पलिंग ऑफ, या इसको आप सिंक फंक्शन भी लिख सकते हैं, सिंक, है ना। तो ये वैल्यू हो गई, मतलब ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया किस सिग्नल का, इस वाले सिग्नल का जो -t/2 से t/2 एग्जिस्ट कर रहा था, उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन कुछ ऐसा होगा। अब इसको अगर आप बोलेंगे कि सर इसको प्लॉट करके भी बताइए, तो प्लॉट करके आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आप जनरली ये मानते हैं कि ना साइन सैम्पलिंग ऑफ टी, आपको मैं सिर्फ एक वो बता देता हूँ, सैम्पलिंग ऑफ टी का अगर आपको कर्व देखना है तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलता है, आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐसा ऐसा होता है, और ये भी ऐसा ऐसा करके सैम्पलिंग ऑफ वो टी का ये है, जहाँ पे जीरो क्रॉसओवर कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए ये जीरो क्रॉसओवर है, जीरो क्रॉसओवर है, ये कब कब होगा, ये हमेशा के पाई में होगा, मतलब यहाँ पे पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, ये हमेशा इसका जो जीरो क्रॉस ओवर होगा वो के पाई में होता है ना। तो आपको जैसे मैं आपको बोलूंगा कि सैम्पलिंग ऑफ टी का जीरो क्रॉस ओवर है ना, जीरो क्रॉस ओवर के पाई में होता है ना। तो ये सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t/2 का जीरो क्रॉस ओवर कब होगा, के पाई तो रहेगा ही, सॉरी के इंटू आपका पाई रहेगा, के पाई तो रहेगा ही, लेकिन ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आपका सॉरी ओमेगा तो है t/2 यहाँ पे आ जाएगा, है t/2 आपका एक मिनट, ओमेगा ओमेगा रहते हैं बाय 2 यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। अब ये के पाई तो हो गया, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इंटू t/2 यहाँ रहेगा, टी कटा, ये कटा, और आपका ओके आई थिंक शायद ओमेगा नहीं रहता है, हाँ ओमेगा नहीं रहता, सॉरी, के देखिए सैम्पलिंग ऑफ टी का जो जीरो क्रॉस ओवर होता है वो के पाई होता है, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t/2 का क्या होगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू t/2 यहाँ पे आप के पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो t/2 आ गया, जिसको आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, के पाई तो रहेगा ही, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऊपर ले जाइए, ये 2 और नीचे यहाँ पे t आ गया। तो इसका जो जीरो क्रॉस ओवर होगा ना, जो अब मैं आपको प्लॉट करने जा रहा हूँ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t/2 को, है ना। तो सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t/2, देखिए सैम्पलिंग फंक्शन ऐसा ही रहता है ना, ऐसा ही रहता है,
और बस इसमें मेन बात होती है जीरो क्रॉस ओवर की। जीरो क्रॉस ओवर कहाँ कहाँ पे, तो इसमें जैसे सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा, जो सैम्पलिंग ऑफ टी था वो आपका के पाई में था, इसमें जो वैल्यू हो रही है वो के इंटू टू पाई बाई टी में हो रही है ना। तो टू पाई बाई टी इसका मेन फंक्शन है, और के इंटीजर मल्टीपल है तो टू पाई बाई टी है, ठीक है। फिर आपका टू इंटू टू पाई बाई टी मतलब फोर पाई बाई टी है, फिर यहाँ पे सिक्स पाई बाई टी है, ऐसे चलता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका गेट पल्स होता था, गेट पल्स माइनस टी बाई टू से टी बाई टू वेरी कर रहा है, ये टाइम डोमेन में वेरी कर रहा है, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में वेरी करना। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ ऐसा आपका गेट पल्स कुछ ऐसा वेरी करता है, ठीक है। तो हम बताना ये चाह रहे थे आपको कि एक सिग्नल है माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, और उसका एम्पलीट्यूड अगर ए है मान के चलिए, अभी तो हम लोग वन ले लिए थे, ए है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा जैसे वहां पे आया टी इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू, लेकिन वहां पे वन था, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए आ जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि कभी भी ये एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड सिग्नल है, इसलिए आपको ये चीज को याद रखना है कि ये अगर आपको कोई गेट पल्स को फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने बोलता है जो कि माइनस टी बाई टू से टी बाई टू स्टैंडर्ड ए एम्पलीट्यूड के साथ है, तो आपको इस जो सिग्नल मिलने वाला है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो होगा सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू, और ये आपका ए टी। ये ए टी क्या है, ये आपका एरिया को दर्शाएगा, है ना। ये सामने वाला जो मैग्नीट्यूड होता है सैम्पलिंग का, ये इसका एरिया को दर्शाएगा, ए इंटू आप एरिया कर लीजिए, ए इंटू टी मिलेगा आपको। तो कभी भी अगर ये वैल्यू चेंज भी होता है तो आपको यहाँ पे वैल्यू को, एरिया को आपको निकालना है। ओमेगा तो रहेगा ही, है ना, ओमेगा रहेगा। ये जो टी बाई टू है ये आपका विड्थ बाय टू हो जाता है, जो विड्थ है आपका टोटल विड्थ, उसका आधा जो है वो यहाँ पे अपन लिखते हैं, और ओमेगा तो ओमेगा ही है क्योंकि बेसिकली ये सिग्नल तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का ही है, तो ओमेगा का तो रहे नहीं वाला है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क में आप सॉल्व करिएगा। माइनस सेवन बाई फाइव है और प्लस सेवन बाई फाइव है, और आपका वैल्यू है मान लीजिए फाइव बाई फोर्टीन, है ना। ये सिग्नल आपको दिया है, इस सिग्नल का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिएगा, है ना। ये सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिएगा और इसका सॉल्यूशन आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करिएगा, आपको मैं वहाँ पे आंसर बता दूंगा कि सही है कि नहीं। इसी मेथड से हो जाएगा तुरंत, 2 मिनट का काम है, आप कर सकते हैं, मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब है, आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है ना। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी स्केलिंग पे भी बात करेंगे, कोसाइन पल्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में हम कैसे यूज कर सकते हैं, और आपका ट्रायंगुलर पल्स क्या है, ये सब जो आपका मेन सिग्नल है, स्टैंडर्ड सिग्नल्स, वो हम लोग जरूरी बात करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर ये आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है। ये चैनल मोनेटाइज होने के लिए नहीं बना हुआ है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, जो बहुत बहुत पैसों में सब्सक्रिप्शन ले लेके लोगों को मिलती है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। हमारी जितनी ज्ञान है, जितने हम मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा, आप देख सकते हैं पूरे पसीने से मैं लथपथ हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है ना। तो ठीक है, आपकी भी अगर आपको भी लगे तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।